Hello students, welcome to our channel. Hope you all are doing well. Today we are starting Human Resource Management. In this video, we will discuss basics of HRM and its functions. Let's get started. Human Resource Management दो वर्ड से बना है. पहला है Human Resource and next one is Management. Human resource refers to the people or employee who works in an organization to achieve its goals. And we are familiar with the term management. It is an art of getting work done by others. Okay, to clear our concept, let's understand the meaning of HRM. It says HRM is the art of procuring, developing, and maintaining a competent workforce to achieve the goals of an organization in an effective and efficient manner. Procuring, developing, and maintaining. These are the three basic functions which need to be performed to achieve the organization goals. Competent workforce मतलब क्या होता है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनके पास वो स्किल्स वो नॉलेज है जो हमारी जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड है. From the above statement, we can say that the core meaning of HRM is to manage people in an organization. Let's discuss the primary functions one by one. The first one is procurement function. It is concerned with hiring people who possess the requisite skills, knowledge, and aptitude. It includes job analysis, manpower planning, recruitment function, placement, induction, and internal mobility. Procurement function perform करने के लिए हमें ये जानना है कि हमें कैसे पर्सन्स को हायर करना है ताकि वो हमारे जॉब के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करें. ये करने के लिए हमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं जैसे कि जॉब एनालिसिस, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड मोबिलिटी. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. Job analysis. It is the process of collecting information relating to the operation and responsibilities pertaining to a specific job. Job analysis में हम ये देखते हैं कि हमें कैसी जॉब करवानी है, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं. पहला जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सेकेंड जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं हमारी जॉब ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब प्रोफाइल. और जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर स्किल्स एंड नॉलेज दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब. द सेकेंड वन इज मैन पावर प्लानिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग that the organization has an adequate number of persons available at proper time performing jobs which will meet the needs and provide satisfaction for the individual involved. Means हमें पहले से प्लान करके रखना है कि हमें फ्यूचर में कितने मैन पावर के रिक्वायरमेंट होगी. इसके लिए हमें डिमांड और सप्लाई को मैच करना पड़ता है ताकि हम पहले से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकें कि हमें फर्दर कितनी मैन पावर की ज़रूरत होगी. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिक्रूटमेंट. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. इस प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन मोर एंड मोर पीपल को स्टिमुलेट करती है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें. इसलिए इसे एक पॉजिटिव प्रोसेस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्सन्स अप्लाई करते हैं. इन्हें इनवाइट किया जाता है अप्लाई करने के लिए. सेकेंड सिलेक्शन. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ascertaining क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, skills and knowledge of an applicant with a view to appraising his or her suitability to the job. Selecting the most appropriate candidate for the specified job position. Here only few are selected for the job, therefore it is also called as negative process. ये बहुत ही टफ जॉब होता है कि इतने सारे हमें एप्लीकेशंस में से कुछ को सेलेक्ट करना है और बाकी को रिजेक्ट करना है, इसलिए हम इसे नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज
placement, matching the employee's qualification, experience, skills, and interest with the job. It is very important task for an HR manager to place the selected candidate at the right place, matching his skills and knowledge with the job, because it is very costly and time taking process and we can't repeat it again and again. The next one is induction. It helps new employees to adapt to their new surrounding and introduce them to the practice, policies and people. इंडक्शन मीन्स एक इनफॉर्मल सा सेटअप होता है जिसमें हम अपने न्यू एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के सराउंडिंग से फैमिलियर करवाते हैं, उनकी पॉलिसीज़ बताते हैं, उनके प्रोसीजर बताते हैं, उनके प्लान्स बताते हैं, ताकि एक न्यू एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट हो सके. ओके, एंड लास्ट इज इंटरनल मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब थ्रू ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन. ये हम खुद ही समझ सकते हैं स्टेटमेंट से कि हम जब भी किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र देते हैं या फिर उसका प्रमोशन करवाते हैं तो हम एम्प्लॉयज़ का मूवमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक जॉब से दूसरी जॉब. द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट फंक्शन. Development aims at enhancing one's ability to understand and interpret knowledge in a useful way. It includes training, executive development, career development, motivation and compensation function. Development किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ताकि वो अपने जो भी वर्कर्स हैं उनकी स्किल को एनहेंस कर सके, ताकि उनका ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो है वो कंप्लीट हो सके, फुलफिल हो चुके और हमारे उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके. इसके अंदर कई फंक्शंस इंक्लूड हैं. फर्स्ट है ट्रेनिंग. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज़ लर्न स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़ एंड एटीट्यूड्स टू फर्दर ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल गोल्स. ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है. हमें जब भी किसी स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत होती है एक जॉब को करने में, तो हम अपने वर्कर्स को वो स्किल की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो जॉब को एफिशिएंटली कर सके. The next one is executive development. It is a systematic process of developing managerial skills and capabilities through appropriate programs. See, what's the difference between the training and executive development? Training is a short-term process and executive development is a long process. And training generally given to the lower level management workers, and executive development is provided to the managerial level or middle level workers. इसमें हम ऐसी मैनेजरियल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग कर सके और अपना जो भी काम है वो दूसरों से अच्छे से करवा सके, मैनेज कर सके, पीपल को मोटिवेट कर सके उन्हें. नेक्स्ट पॉइंट इज़ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. इट एम्स एट एजुकेटिंग द एम्प्लॉयज़, helps them in searching the job and execution of work experience. It includes succession planning. What it says, career planning हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक एम्प्लॉय हमेशा चाहता है कि उसका करियर प्लान अच्छे से हो, वो हमेशा आगे बढ़े. तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो हमेशा एक्सपीरियंस करता रहे कुछ नए, और जो भी उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएँ वो उसे ज़रूर ले ताकि वो अपने करियर को डेवलप कर सके. तो ये ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एम्प्लॉयज़ को उनकी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब सेलेक्ट करने में या फिर सर्च करने में हेल्प करे, उनको एजुकेट करने में हेल्प करे और उन्हें एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें.
And the last function is maintenance function. It refers to the HRM activities that maintain employees' commitment and loyalty with the organization. It includes health and safety, employees, labor, relation, teamwork, communication. मेंटेनेंस फंक्शन क्या होता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे रिटेन करके रखना है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे कॉम्पिटेंट वर्कर्स हैं, हमें उन्हें ज़रूर रिटेन मेंटेन करके रखना है ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं। उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उनकी कुछ ज़रूरतों का ख्याल रखें, जैसे कि पहला है एम्प्लॉयज़ लेबर रिलेशनशिप। हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर आर एसेंशियल टू अचीव इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एक ऑर्गेनाइजेशन में हम मैनेजमेंट और लेबर का हमेशा एक अच्छा हेल्दी रिलेशन होना चाहिए ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी डिस्प्यूट्स ना हो और वो सब एक साथ काम करें ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। द नेक्स्ट वन इज टीम वर्क। इट एनहांस एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट पॉजिटिव साइनर्जी। टीम वर्क एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है एक पॉजिटिव सराउंडिंग क्रिएट करने का, ताकि सब अपने इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होता है और सब अपने स्किल्स प्रोवाइड कर सकते, सब अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और इंडस्ट्रियल जो भी अपना इंडस्ट्रियल के जो भी अपने गोल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ के हेल्थ एंड सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उन्हें एक गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ देना चाहिए और उनकी सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, फ्रॉम दिस पिक्चर we conclude our topic in a nutshell what human resource management does. The first is conducting job analysis, recruitment and orientation, training and development, compensation and benefits, performance appraisal, employee motivation and lastly career development. मैंने यहाँ UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटैच किए हैं, आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये 2017 का क्वेश्चन है और ये 2018 का। आज हमने जो टॉपिक वीडियो में डिस्कस किया है ये उन्हीं से रिलेटेड है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।